آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمت سے کبھی ہارنا نہیں چاہیے. میں علماء سے کہہ رہا ہوں, حفاظ سے جتنے بھی لوگ ہیں, آپ لوگ کھڑے ہو جائیے گا اور میں یقین دلاتا ہوں کہ ٹکٹ بھی کٹے گا اور آپ کے آدمی کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ. سیمانچل میں سیمانچل ڈیولپمنٹ فرنٹ کا آغاز. لوک سبھا چناؤ 2024 میں آ سکتا ہے اس نئی پارٹی ایس ٹی ایف کا امیدوار. لوگ بڑی سنکھیا میں پارٹی سے جڑ رہے ہیں. ورتمان سانسد سے لاکھوں لوگ ہیں ناراض. لوک سبھا چھیتر میں کام نہیں ہونے سے ہے ناراضگی. چھترگاچھ میں مفتی اطہر جاوید قاسمی کی ادھیکشتا میں سیمانچل ڈیولپمنٹ فرنٹ کی بیٹھک میں کیا باتیں ہوئی, اس ویڈیو میں انت تک بنے رہیں. آزادی کو 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. ہمارا بہار کبھی تو اس پوزیشن میں تھا کہ دوسرے صوبوں کے لوگ یہاں آ کر محنت مزدوری کر کے اپنے اہل و عیال کا گزر بسر کیا کرتے تھے. کبھی تو بہار کی یہ حالت تھی کہ بہار کی جی ڈی پی ہندوستان کے اولین صوبوں میں شامل تھی. لیکن اس عرصہ دراز میں آزادی کے بعد بہار کی ترقی تو نہیں ہوئی, بہار تنزل کی طرف ہی بڑھتا گیا اور دیگر صوبے جو اس وقت بالکل مفلسی کے حال میں تھے, جن کے پاس پیسہ نہیں تھا, جن کے پاس کاروبار نہیں تھا, جن کے پاس روزگار نہیں تھا, جن کے پاس پانی نہیں تھا, بجلی نہیں تھی, وہ صوبے آج بہت آگے بڑھ گئے ہیں. آج بہار پورے دیش میں پچھڑا ہوا راجیہ سمجھا جاتا ہے. اور پھر بہار میں جو ہمارا یہ سیمانچل کا چھیتر ہے, بہار میں بہت سے علاقے ہیں. متھلانچل میں آپ چلے جائیے, آپ کو ترقی مل جائے گی. مظفر پور بیگوسرائے سے آگے بڑھیں گے, بھوجپور کے علاقے میں پہنچیں گے, مگدھ کے علاقے میں پہنچیں گے تو آپ کو ترقی ملے گی, پلانٹ ملیں گے, فیکٹریز ملیں گی, لوگوں کے پاس روزگار ہے. لیکن سیمانچل جو بہار کا چھیتر ہے یہ سب سے زیادہ پچھڑا ہوا ہے. یہاں روزگار کے نام پر کچھ نہیں ہے, یہاں لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, یہاں لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے, یہاں ہیلتھ سویدھا نہیں ہے. صحت کے اعتبار سے یہ علاقہ بہت پیچھے ہے, تعلیم میں بہت پیچھے ہے, روزگار میں بہت پیچھے ہے. پورے ہندوستان میں سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی چھیتر ہے تو وہ ہمارا یہ سیمانچل چھیتر ہے. اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ ہم دوسروں کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ ہماری بہار حکومت اولین جواب دہ ہے اور سب سے پہلی ذمہ دار ہے سیمانچل کو پچھڑا رکھنے میں. اس لیے اب ہم سیمانچل واسیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ بہار حکومت سے برابر کا حصہ لینا چاہتے ہیں. اب ہمیں بھیک نہیں چاہیے. اب ہم دھرنا دیتے دیتے تھک چکے ہیں, سڑکوں پر نکلتے نکلتے ہم پریشان ہو گئے ہیں. احتجاج ہی اب ہمارا مقدر نہیں رہا. اس لیے اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلامی نہیں, دربار میں حصہ لیں گے سرکار میں. تمام بدھی جیویوں سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے, تمام لوگوں سے ہم مشورہ کر رہے ہیں. سب لوگ مل کر صرف ایک بات اور صرف ایک آواز اور صرف ایک مانگ اور صرف ایک غرض اور صرف ایک مقصد ہے کہ سیمانچل کا وکاس کیسے ہو, سیمانچل ترقی کیسے کرے. سیمانچل کو جو اب تک حقوق سے دور رکھا گیا ہے, سیمانچل کو جو اب تک وکاس سے دور رکھا گیا ہے, سیمانچل کو جو اب تک روزگار سے دور رکھا گیا ہے, سیمانچل کو جو اب تک تعلیم سے دور رکھا گیا ہے, سیمانچل کو جو اب تک ہیلتھ میں دور رکھا گیا ہے, سیمانچل میں جو اب تک پینے کا صحیح پانی نہیں ہے, سیمانچل میں جو اب تک بجلی کی اتنی سمسیا ہے, بجلی کٹوتی کی سمسیا ہے, ان تمام عوامی مدوں کو ہم اٹھائیں گے اور جنتا کے تمام مسائل پر ہم کام کریں گے. اب دیکھ کہ ہم نے سب کو دیکھ لیا, فلاں کو دیکھ لیا, فلاں کو دیکھ لیا, فلاں کو دیکھ لیا. میں تمام پارٹیوں کا نام نہیں لوں گا. ان تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے کینڈیڈیٹ یہاں بھیجے, یہاں کے لوگوں نے تمام پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ کو جتا کر بھیجا, لیکن سب لوگوں نے ہمارے ساتھ سوتیلا ویوہار کیا. ابھی ایک تنظیم ہے, ایک این جی او ہے, اور سیمانچل ڈیولپمنٹ فرنٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو یہ سیمانچل کا علاقہ ہے, اس علاقے کے جن جن میں اور کن کن میں کس طریقے سے سیاسی بیداری آ جائے. سیاسی بیداری, سب لوگوں میں صحیح سیاسی بیداری کیسے آ جائے. سیاسی بیداری
लाने की बुनियादी ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग जो इंतखाब करते हैं कि भाई फुला कैंडिडेट है, फुला पार्टी से आ गया तो हम उनको मुंतखब कर लेंगे और उनको जिता देंगे, ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं। कभी MJ अकबर आया, जीत के चला गया, अभी बीजेपी में है। कभी शहाबुद्दीन आए, जीत के चले गए। कभी कोई आए, कभी कोई आए। यहाँ के लोगों को सीमांचल के डेवलपमेंट के नाम पर, सीमांचल की तरक्की के नाम पर, सीमांचल की तालीमी बेदारी के नाम पर, सीमांचल का जो सेहत का सेक्टर है वो इंतहाई गिरा हुआ है। 20 लाख की आबादी हमारे किशनगंज में है और किशनगंज शहर में आपके पास 20 सही डॉक्टर नहीं है। किसी को हार्ट अटैक अगर हो जाता है तो उसको ले जाना होता है या तो पूर्णिया या सिल्लीगुड़ी, और जाते जाते 80% लोग मर जाते हैं। 20% की किस्मत सही होती है, वो पहुंचते हैं तो बच पाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को बुनियादी तौर पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। उनमें से 2 चीज़ें बहुत बुनियादी है। एक तो तालीम का शोबा है। यहाँ का जो तालीमी रेशियो है, सिर्फ 2% लोग यहाँ पर ग्रेजुएट हैं। 80% लोग निरा जाहिल है, अनपढ़ है और खेतों में काम करके मस्त है। उनके अंदर बेदारी लाने की ज़रूरत है कि भाई अपने बच्चों को पढ़ाइए। वो बेचारे पढ़ाएंगे कैसे? ये सरकारी स्कूल जितने भी चल रहे हैं, इन स्कूलों की निगरानी करने वाले कोई नहीं है। अच्छा, वो दलाल टाइप के लोग जो गांव का दोनिया बना हुआ है, गांव का मुखिया बना हुआ है, वो जाकर के उस स्कूल का जिम्मेदार बना हुआ है। अब वो दलाल जो जिम्मेदार बना हुआ है तो वो खाने में ध्यान देगा या तालीम पे ध्यान देगा? इसी तरह की दलाली को ख़त्म करना है। ये तंजीम अच्छे लोगों के लिए है और अच्छे काम के लिए है। इसलिए आज की इस मजलिस में आप अगर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर तकरीबन तमाम लोग ही अच्छे नज़र आ रहे होंगे। हम ये चाह रहे हैं कि सालेह लोगों की क़यादत आए और सालेह लोगों की क़यादत के बगैर काम नहीं हो सकता है। अब सालेह की 2 किस्में हैं। एक सालेह को आप ले लीजिए कि भाई वो कोई भी हो सकता है, किसी भी बिरादरी से हो सकता है। अब वो ईमान वाला हो या ना हो, लेकिन अगर वो बाकिरदार है, वो इलाके का डेवलपमेंट चाहता है, वो लोगों की खिदमत करना चाहता है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम उसको ले सकते हैं, उनको साथ लेकर काम कर सकते हैं। और हमको जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि सीमांचल के मसाइल हल हों। आज 50 सालों से जो है इस इलाके के लोग विकास के लिए, तरक्की के लिए रो रहे हैं। दूसरे मसाइल को जाने दीजिए, सिर्फ नदी कटाई को लीजिए और पुल बांधने वाली बात को लीजिए कि लोग बहुत तरस रहे हैं। यहाँ कोई तरक्की नहीं है इस इलाके में। यहाँ के आवाम, यहाँ की पब्लिक जो है लोगों को जिता के भेज रहे हैं और वो कस्मों के ऊपर कस्में खा रहे हैं इलेक्शन से पहले। लेकिन फिर वही होता जो ढाका 3 बात, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बस जीत के चले गए, दिल्ली के होके रह गए, पटना के होकर रह गए। क्या बात। लेकिन एक इल्मी शख्सियत, एक दीनी शख्सियत और एक बहुत एशिया का सबसे बड़ा मदरसे से पढ़े हुए एक वहां का फर्जन जे अर्जुमन जो है अब हम लोग को नसीब हुआ है। और हम लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं कि वोट के नाम पर, इस्तिस्वाबे राय के नाम पर जो हमने किया था वो इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में आपको देंगे वोट। इंशाअल्लाह आपको जो यहाँ के आवाम की जिम्मेदारी उठानी है, यहाँ की तालीमी निजाम को, यहाँ के तालीमी निजाम को सुधारना है, यहाँ के तिब्बी निजाम को सुधारना है, यहाँ के विकास आपको इसका दरिया बहा देना है। ये सारे आरज़ू आप हमारे सामने रखें। आपका क्या प्लान है, आपकी क्या प्लानिंग है, आपके क्या अज़ाइम हैं, आप क्या चाहते हैं। अगर आपको इसमें खड़ा कर दिया जाए और टिकट मिल जाए कि हमारे जो जिम्मेदारान हैं अगर वो आपको दे दें तो आप क्या करना चाहते हैं हमारे लिए, और इस सिलसिले में आप हमारे सामने अपनी बातों को रखें। फिर हम आपके लिए गली गली और गांव गांव, डोर टू डोर जो है आपके लिए जो है हम
जान तोड़ कोशिश लगा देंगे और इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा कि जो है आप इनके एमएलए होकर के जो है इस सीमांचल के इलाके वासियों को दिखा देंगे। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह एमपी बनेंगे और धाड़ेंगे कहाँ, उसमें क्या पार्लियामेंट में दिल्ली के जाके धाड़ेंगे, आप लोगों के लिए मिसाल कायम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शेर में पढ़ना चाहूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर। मुफ्ती साहब के हवाले से मैं कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवा बनता है। मैं ये चीज़ कहूँगा कि आज जो मुफ्ती साहब SDF इस संगठन के तहत जो मिशन लेके जो चल रहे हैं, सबको मिलजुल के हर तरीके से मदद करना है। यानी इसको कैसे बढ़ाया जाए, माल के जरिए से बढ़ाया जाए, रुपया पैसा देकर उसको आगे बढ़ाया जाए, कुछ मशवरा से उनको आगे बढ़ाया जाए, हर गांव में इनके क्या है, इनके बारे में इनको लोगों को जागरूक किया जाए, तब जाके हम लोग एक कामयाब बन सकते हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश थी, बड़े दिनों से सोच रहे थे कब तक हम दूसरों के झोला ढोते रहेंगे। क्या बात। हमारे सीमांचल में क्यों नहीं लोग जागते हैं, अलग अलग पार्टी बाहर से आते हैं और उसी के झंडा लेकर के हम दौड़ते हैं। तो हम ये चाहते थे, मेरी दिली ख्वाहिश थी, आज जनाब मुफ्ती अतहर कासमी साहब हमारे बीच और मौलाना समीम रियाज नदवी साहब, मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब, इन लोगों ने पहल की। तो हमें चाहिए कि हम सब मिल करके इस पार्टी को आगे बढ़ाएं और सीमांचल में जितने डेवलपमेंट होना है, जो चाहिए, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको इंशाअल्लाह हम लोग अगर इस पार्टी में साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आगे इनकलाब बर्पा करेंगे इंशाअल्लाह। सीमांचल के लिए, सीमांचल के तलबा के लिए, सीमांचल के बच्चों के लिए तरक्की कैसा हो, वक्तन फ़वक्तन जैसे जो भी नेता आते हैं अपने अपने कामयाबी करके अपने हलके में जाके चुप बैठते हैं। तो हमारे और आपके नज़दीक मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब तशरीफ़ फरमा है। हम लोग सब मिलकर एक कोशिश करेंगे कि मुफ्ती साहब का एजेंडा को आगे बढ़ाएं, ताकि सीमांचल हमेशा हमारे बच्चे आने वाले नस्ल क़यामत तक जागरूकता रहें। क्योंकि ये जो हुकूमत है मेरे अजीज दोस्तों, ये हुकूमत हमको और आपको आने वाले नस्लों को बर्बाद करने के लिए ये हुकूमत काम कर रही है। इसलिए हमारी नस्लों की बका के लिए, हमारी ज़िंदगी की बका के लिए, हमारे नस्लों को जागरूकता करने के लिए हमें ऐसे शख्सियत की ज़रूरत है जैसा मुफ्ती अतहर जावेद साहब हैं। तो इंशाअल्लाह सब लोग कोशिश करेंगे ताकि मुफ्ती साहब की सपोर्ट करें, हम भी और दिगर लोगों को भी हम तैयार करें, ताकि मुफ्ती साहब के भरपूर हम लोग तावन करके इंशाअल्लाह पार्लियामेंट तक हम लोग कामयाब बनाएं, करेंगे ना इंशाअल्लाह। सीमांचल एक पसमानदा इलाका है, हर किसी को मालूम है, और हम सब इसी इलाके में बसते हैं जी। पसमानदगी का रोना रोते हैं। हमारे सामने कई मसाइल हैं, एक मुल्की पैमाने पे मसाइल हैं हमारी वजूद का, और एक इलाकाई पैमाने पर हमारे मसाइल हैं सीमांचल का। तो इस मुल्क के जो हालात हैं और यहाँ पर जो फ़िरका परस्त तंजीमें हुकूमत पर काबिज़ हैं, फ़िरका परस्त क्या, पूरी जमातें ही फ़िरका परस्त हैं। कोई दबे लफ्ज़ों में फ़िरका परस्ती करती है, कोई पार्टी, और कोई खुले लफ्ज़ों में फ़िरका परस्ती करती है। तो इस मुल्क में और हमारे इस इलाके में सीमांचल की कामयाबी उसी वक्त हो सकती है जबकि अपने नुमाइंदे अपनी जमात के लोगों को आगे बढ़ाएं, कि अपनी पार्टी हो, किसी पार्टी का गुलाम ना हो, हमारी सीमांचल में हो या मुल्क में हो, हमारी वजूद और हमारी बका इसी में मुज़मर है कि हम सियासी ओहदों तक पहुँचे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे दरमियान एक बहुत बड़ी शख्सियत की आमद है।
جن کے ساتھ میں نے تقریباً 5-6 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی اور حضرت نے اس طرف اپنے قدم کو بڑھایا، کیونکہ ہمارا ہیرو وہی ہوگا جو ہمارے ایجوکیشن کے بارے میں سوچے گا، ہمارا ہیرو وہی ہوگا جو بالکل مڈل کلاس فیملی سے جو لوگ آتے ہیں ان کی کام نہیں ہونے پر ان کے ساتھ قدم ملا کر کے چلے گا، وہی ہمارا اصل میں ہیرو ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں آپ کو چننا پڑے گا، تو میں کہتا ہوں یار ہمارے درمیان ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین ہے الحمدللہ، اگر ہم لوگ چاہیں کہ ایک عالم دین کو سپورٹ کر کے اگر راجنیتی کی طرف لائے تو الحمدللہ ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم کو 100% کامیابی ملے گی۔ لیکن ہمارے نیت میں بھی کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں یار ان کو کیا سپورٹ کریں گے، ان کو کیا سپورٹ کریں گے، ان کو کیا کریں گے، لیکن میں سارے باتوں کا ایک ہی جواب دیتا ہوں، بھائی ہم لوگ جو ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنے اوقات کو ہم پہچانیں تو صحیح۔ پارٹی دو باتیں، سیکولر پارٹی ہو، علاقائی پارٹی ہو اور علاقے کے آدمی ہو، علاقے کے آدمی، کیونکہ آپ کا درد آپ کے اپنے لوگ سمجھیں گے۔ ایم جی اکبر ایک زمانے میں آئے ایم پی بن اور ہم لوگ بے تحاشا ووٹوں سے ان کو کامیاب کر، ان کے مقابلے میں حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کو کامیاب نہ بنا کر ان کو ہم لوگوں کی ایک سوچ تھی، الحمدللہ اس سوچ کے اندر کافی تبدیلی آئی ہے۔ میں حضرت کے بارے میں حضرت مفتی اختر جاوید صاحب قاسمی دامت برکاتہم میں دل سے اور ان کی کئی وجوہات بھی دل سے یہ چاہتا ہوں، اور اس میدان کے جو مرد مجاہد ہیں، کئی باتیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ خود سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، پھر عوامی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور حضرت پہلے ہی سے یعنی میں یہ کہوں کہ آج سے تقریباً میں نے 10-12 سال پہلے سے میں حضرت کا نام سن رہا ہوں، حضرت سے بالمشافہ ملاقات نہیں ہو پائی لیکن ان کا نام نامی پہلے سے ہمارے یعنی احباب کے درمیان گونج رہا تھا اس وقت سے۔ لیکن جب میں نے خود دیکھا حضرت کے کام کو، حضرت کی یعنی جدوجہد کو اور حضرت کی کوششوں کو، اور بہت سارے موقع پر حضرت نے بہت ہی جاں بازی سے اور بہت ہی جاں انصاری اور جاں بازی قربانی سے بہت سارے کام کو انجام دیے، وہ ہم ان کے علم میں ہیں، اور حضرت وہاں دلی کے اندر اور یعنی بہت سارے بڑے بڑے کام انجام دے رہے ہیں، اور ہم سبوں کے علم میں یہ بات ہے، اور ماشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علاقائی آدمی ہوں، علاقائی لیڈر ہوں، علاقہ کے ہوں، تاکہ علاقے کے درد کو سمجھیں، ایک بات۔ دوسری بات کہ آج پورے ہر جانب سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، آپ کو چارہ ڈال کر لوہانے کے لیے بہت طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہر آدمی اپنے کو اپنا کر کے آپ کا ووٹ لیتے ہیں، اور پھر وہ آپ کا اپنا گرچہ نہیں ہوتا ہے، آپ جانتے۔ اب یہ سب کچھ ہم نے تجربہ کر لیا، یہ سب کچھ ہم نے اب تک تجربہ کر لیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا اسرار الحق صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کو ووٹ دیا اور بہت کام کیے، یہاں کا درد کو سمجھا، صبح سے لے کر شام تک ان کے رفائی کام کے اندر اور ہماری اور آپ کی خدمت کے اندر وہ لگے ہوئے تھے۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ اور ہم جس چھیتر سے آتے ہیں، جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ جو سیمانچل ہے ہمارا، بہار کے اندر سیمانچل بہت ہی پچھڑا، بہت ہی مطلب یہاں کے لوگ اتنا پریشان ہیں، یہاں کے لوگ ہر اعتبار سے پریشان ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے معاملے میں ہو یا پھر کسی بھی میدان میں دیکھیے یہاں کے لوگ پیچھے ہیں۔ یہاں رہنے والے، سیمانچل میں رہنے والے اکثر مسلمان ہیں۔ اب پتہ نہیں کیوں یہ سرکار ہمارے ساتھ یہ سوتلا پن کر رہی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ یہ ویوہار کیوں کر رہی ہے یہ نہیں پتہ۔ ہم ضرور کہیں گے سیمانچل کے لوگوں سے کہ آپ جس کا بھی چناؤ کریں، جس کو بھی چنیں، ایک اچھے لیڈر، ایک اچھے نیتا کو چنیں جو آپ کا کام آ سکے، آپ کا کام کر سکے، آپ کا کام کر سکے۔ بے شک بے شک۔ کسی مبارک صدیقی صاحب کا ایک بہترین کلام ہے جو منظوم کلام ہے اور بہت ہی مشہور ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا
वतन को जो महताब कर दे, उदास चेहरे गुलाब कर दे, जो जुल्मतों का निज़ाम बदले, जो रोशनी बेहिसाब कर दे, तुम ऐसे रहबर को वोट देना, तुम ऐसे रहबर को वोट देना। और हम इसी शेर के साथ और जो मुबारक सिद्दीकी साहब ने जो कलाम कहा है, हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए इसी के तहत हम ऐसे लीडर को हम चुनेंगे जो हमारा काम आ सके, और वो काबिलियत हमारे मुफ्ती अतहर जावेद साहब में है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इनका साथ दें और इनका हाथ मजबूत करें। शुक्रिया। इस वक्त मेरा मकसद ये नहीं कि मैं 2024 का चुनाव लड़ने के लिए, ये मकसद असली नहीं है। मकसद ये है कि क्या हमारा किशनगंज में, सीमांचल में यही चलता आएगा जो पहले होते आ रहा कि हमारा बाप था या हमारा दादा था, हम उसी के नाम पर, उसी की बुनियाद पर हम चलते रहे। इस वक्त जरूरत इस बात की, सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट जो हमने सबके मशवरे पर, और उसका नाम रखने वाला भी हमारा मौलाना शरीफ रियाज साहब, मौलाना आफ्ताब अजहर सिद्दीकी साहब है। इन दोनों के मशवरे पर हमने और भी नाम को बड़ा किया था, लेकिन दोनों ने मिलकर नाम को मुख्तसर किया है। भाई ये छोटा सा नाम सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट, तो ये हमारा, इसके अंदर हमने शुरुआत में ये हम एनजीओ के माध्यम से हम इसको चलाएंगे। जैसे हम एनजीओ बना रहे हैं, उसके माध्यम जगह जगह हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम चुनाव तो ये बाद की चीज़ है, ये सबसे लास्ट की चीज़ है। अगर सबकी राय होगी, सबका मशवरा होगा, और हमारे लोग, अभी ज़रूरत इस बात की है कि कोई ये सिर्फ ये लिखा हुआ जो है सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट कागज में नहीं, बल्कि जमीन पर उतारना है। और हम किसी पार्टी को निशाना नहीं बनाना चाहते हैं, हम काम करने वाले उस गाड़ी के ड्राइवर की बात करते हैं। कि आज जो हमारे यहाँ सूरत हाल है, आप देख लीजिए सियासी एतबार से। देखिए, हम ये कहेंगे अभी बड़ा इस वक्त जो हम देख रहे हैं, मुताला कर रहे हैं पूरे अपने सीमांचल का, किशनगंज का, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब हमारे यहाँ दौलत के एतबार से पसमानदा नहीं है, इल्म के एतबार से पसमानदा नहीं है, शऊर के एतबार से पसमानदा नहीं है, सिर्फ सोच बदला हुआ है, सोच नहीं पा रहे हैं। हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हमारे पास बावजूद तमाम वसाइल के रहने के बावजूद, या तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है, फिर भी हमारी नीयत ये होती है कि कहीं से कुछ और आ जाए, वो फ्री में आ जाए। फिक्री पसमानदगी हमारे यहाँ है, उसको ख़त्म करना जरूरी है। हम सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के जरिए से गांव के सबसे नीचे तबके का, जिसके पास कोई नहीं पहुंचा है, किसी पार्टी का आदमी नहीं पहुंचा है, कोई वर्कर नहीं पहुंचा है, वहां सीमांचल डेवलपमेंट फ्रंट के अफराद पहुंचे, उसकी मदद करें। जब ये आप कामयाब, कोई भी तंजीम, कोई भी जमात जब तक जिंदा नहीं रह सकती है जब तक उसके अफराद मुतारिक और फाल ना हो। ये जरूरी है। आज जो जमीयत उलमा है, जमीयत उलमा एक दस्तूरी जमात है, और जमीयत उलमा आज से 125 साल पहले, 150 साल पहले, आज़ादी से पहले वो जमात बनी, और मुल्क की आज़ादी में उनका बड़ा हिस्सा है। उन लोगों ने कुर्बानी की है, उन लोगों ने रोजा रखा है, अब ये लोग अफ्तार कर रहे हैं। क्या माना आफ्ताब साहब अफ्तार और कर रहे हैं, उनके खानदान के लोग और दूसरे लोग अफ्तार कर रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि हम सब मिलकर के, और ये कोई बैद नहीं है, उलमा, और मैंने ये बात, आप लोगों की बात को मैंने सिर्फ पटना में मैंने नहीं कहा, मैं दिल्ली में जो बहुत ही जिम्मेदार हैं, पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग हैं, उन तक मैंने पहुंचाया कि किशनगंज एक पार्लियामेंट्री क्षेत्र का ऐसा है कि मुसलमानों की अक्सरियत के साथ उलमा की भी अक्सरियत है। और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई आलिम एमपी बन सकता है या एमएलए आसानी के साथ बन सकता है, तो वो पार्लियामेंट्री क्षेत्र हमारा किशनगंज है। और उसको साबित करके दिखाया मौलाना असरफ साहब ने। 4 मरतबा, मैंने 2 मरतबा मैं शरीक नहीं रहा। मैं एक दफा जब छोटा था, जब मौलाना कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, बहुत छोटा था मैं, मेरे अब्बा कंधे में ला करके वो प्रोग्राम में हमको लेके आते थे। उस जमाने में मौलाना बिल्कुल लहीम सहीम, और मौलाना बहुत मजबूत भी थे। मौलाना उस जमाने में जब मौलाना चुनाव लड़े, पहली मरतबा हार गए कांग्रेस से, फिर मौलाना को टिकट नहीं मिला। मौलाना गांव गांव में
मेहनत किए, पार्टी का अपना मिजाज है, उनकी मर्जी है, टिकट मौलाना को नहीं मिला। मौलाना मुझसे सब बात शेयर कर देते भी क्या मौलाना गांव गांव में मेहनत किए भाई, जब वो चुनाव लड़े फिर उसको घूम ही रहे थे, उसके बाद फिर मेहनत किए, आइन टाइम में मौलाना का टिकट काट करके एमजे अकबर को टिकट दिया गया। मौलाना जीतते जीतते हार गए, और हराने में लोग बाहर के लोग नहीं थे, भाजपा के लोग नहीं थे, अपने लोग थे, यहीं के लोग थे जिस खित्ते में हम लोग बैठे हैं। मगर हराया कोई बात नहीं मौलाना, लेकिन 4 मरतबा चुनाव हार गए, मौलाना हिम्मत नहीं हारे और मौलाना मुकाबला किए, फिर उसके बाद भी लड़े, उसके बाद लड़ते रहे, तीसरी मरतबा भी लड़े, चौथी मरतबा भी लड़े। चौथी मरतबा हारने के बाद मौलाना ऐसा लगा कि भाई मैं बार बार चुनाव लड़ा, अब इसका मतलब ये है कि हमारी जरूरत सियासत में नहीं, अब तो हम तालीमी मैदान में हम काम करेंगे। मौलाना उसके बाद वहां से निकले, तो मौलाना उस वक्त जब पहली बार चुनाव लड़े थे मौलाना जमतुल के जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद फिर जब जनरल सेक्रेटरी थे, फिर कुछ दिनों के बाद कुछ हालात आए, मौलाना वहां से अलग हुए, तो वहां पर उस वक्त सबसे पहले उन लोगों ने मिल्ली काउंसिल बनाया, फिर वो मिल्ली काउंसिल थे खला काजिम जाहिद साहब के क़यादत में। उसके बाद फिर मौलाना कुछ हालात वहां भी सामने में आ गए, तो मौलाना मिल्ली फाउंडेशन बनाया, उनके जरिए से मौलाना ने बड़ा काम किया तालीमी मैदान में। गाँव में तकरीबन 200-250 मकातिब, स्कूल, मदरसा, मैंने काम उन्होंने किया। और क्या हुआ, वो बिल्कुल चूंकि उनको इखलास लिल्लाही थी, वो इतना नहीं चाह रहे थे कि हमको एमपी बनना ही है। लोग बार बार कहते रहे कि अगर एमपी हार है तो एमएलए जीत लड़ लीजिए, हाथ बंद करके जीत जाइएगा। उन्होंने कहा नहीं, हमें तो काम करने की बात कर रहे हैं, हमको तो तनख्वाह लेना नहीं है, हमारे तो काम करना है। इसलिए बहरहाल मौलाना बहुत आखिर में आकर के 2009 में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हिम्मत से कभी हारना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह मैं उलमा से कह रहा हूं, उफ़ा से जितने भी लोग हैं, आप लोग खड़े हो जाइएगा और मैं यकीन दिलाता हूं कि टिकट भी कटेगा और आपके आदमी को टिकट मिलेगा इंशाअल्लाह। मैं अकेला था जब 2009 में उनको टिकट मिला था। आज जो एमपी है और उसका टिकट कटाने के लिए मैंने पूरी दिल्ली का छान मारा, और वो हम समझ रहा था कि ये हमारा क्या टिकट काटेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 दिन के अंदर वो नक्शा बदला। और मौलाना का, चूंकि मौलाना हमारे बहुत मजबूत थे, 4 मरतबा चुनाव लड़के हार गए, तो उनका बायोडाटा बहुत मजबूत था। जब हम लोग उनको बताए तो लोग दंग हो गए, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो हमारा पुराना आदमी है। जो लोग मौलाना कांग्रेस में लड़े थे उस जमाने के भी लोग थे, वो कहा तो हमारा पुराना आदमी है। तब मौलाना के बारे में सिफारिश करवाया, और मौलाना को बोले कि भाई यही आदमी है जो हम का किशनगंज का एक आदमी है जो बाहर के किसी भी उम्मीदवार को हराने की ताकत रख सकता है। तब लोगों ने मिलकर उन लोगों ने मौलाना के लिए किया, और 2009 में टिकट मिला, उनका टिकट कटा, चूंकि उनका नाम भी आ चुका था डॉक्टर साहब का, टिकट कट के मौलाना को टिकट मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना जीते।